schedule. And as soon as sir enters, I request everybody to please stand up and give a rousing welcome. Honorable Pramod Kumar Bansal sir. He is here with us. A big round of applause. Who needs no introduction. Bansal Public School Chief Mentor and Director. We are really privileged to have his company today. At DPS, every function, no function is complete without his presence, and we are really grateful that he is gracious enough that whenever we invite, takes out time to be with us and make our festival more beautiful. राधे राधे हो अमित अग्रवाल तो इस सभन को ई पावन अवसर पर दिल से स्वागत करूं। श्री कृष्ण दादा दादी नाना नानी को सम्मान समारोह में आज को दिन वो है जब नंद भवन में कान्हा लला जन्मे रहे और सोमोव्रत की गली में बंसी बाजत रही हो, वैसे ही ठाव में अचूक प्रेम और भक्ति से गूंज रहे है। हमारे बुजुर्ग जे हमारे जीवन तरुवर की छांव है, जिनको आशीष में हम सौभाग्य पावत हैं, उनका हृदय से नमन करीबो। तो चलो आज हम सब मिलके ठाकुर जी की लीला को रस पियत हैं और अपने पूज्य जनन को चरण वंदना करीबो। जय श्री राधे, जय कन्हैया लाल की। A very delightful and as I stand here today, I am absolutely thrilled celebration of one of the most revered and joyous festivals of India, who is a symbol of wisdom, love, mischief and dharma. And to make our day more divine, we have the pleasure of some of the most special guests in our campus. So a very special welcome to our honored guests today, the guiding lights of our lives, the senior citizens of our nation, the beloved grandparents of our dear students. Your presence has truly made this celebration more special than ever. So thank you for accepting our invitation, grandparents, joining them in this spiritual festivity. आप सभी का स्वागत, सभी दादा दादी और नाना नानी को नमन करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे वरिष्ठ समाजजनों का। एक बार और जोर से तालियां। Today we experience a divine joy, and without respected members of the BPS family and our guiding light, his presence is nothing than a bliss, as if we have some divine blessing on all of us. Whenever he is around, we feel, ladies and gentlemen, I have the honor to introduce to you an eminent educationist, a man of dignity, discipline and vision, the man who silently shapes the future of many, someone who is more of a personality than a person, an educationist par excellence, a man of integrity, values, visionary leader and the soul of Bansal Public School. Our Chief Mentor and Director, Honorable Pramod Kumar Bansal sir. Please give a big round of applause to Honorable. We also have the power of ideas and inspiration, the multi-talented Director of Bansal Public School, Dr. Richa Bansal ma'am. May I request, we are honored to have your presence with us. And now, to formally begin today's celebration, I would like to invite our principal mentor, Shri Gyan Gautam sir, to please come forward and offer a traditional big round of applause. Can we have a big round of applause as our principal mentor welcomes our chief guest.
and show our love and gratitude in a way that's fitting Indian culture. For this day, every day in your life, and for that we have a small token of our love and gratitude. May I request young Nani Radhas to come forward and present our token of thanks and gratitude and our love for you. Nani राधाओं के लिए राधे 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 राधे। Welcome ceremony. It's time to move on. And as we begin this sacred celebration, we would like to invoke the blessings of Ma Saraswati, the symbol of knowledge, and of course Lord Krishna as well. So before we dive into today's festivities, and the divine protector, the divine flutist, the protector of dharma and the guiding light of humanity, Principal Ma'am Santa Tripathi and our respected mothers, to please do the honors. Proceedings. Are we ready? Are we ready? Okay, but for that I want complete silence. Without doing side talkings, focus on the program. And now the stage is set. The spirit is high and the blessings of Ma Saraswati and Lord Krishna are with us. On this occasion, how can we not hear from the man whose wisdom always guides us, whose words inspire us, and whose presence elevates us. Honorable Chief Mentor and Director, Pramod Kumar Bansal Sir. Big round of applause for Bansal Sir as I invite him to come on the stage and address this divine gathering and of course bless DPS Chief Mentor and Director, Honorable Pramod Kumar Bansal Sir. Jan sir, entire BPS fraternity, fortunate grandparents and my dear students. Today I am extremely happy and overwhelmed. Not because of one reason or two reasons, rather it is because of three reasons.
First, I am the integral part of this school, and second, I am the integral part of this beautiful Janmashtami celebration and the Grandparent Day celebration. And third, I myself is a grandfather. So who better than me will understand the type of happiness, joy, thrill, proud you all must be carrying so as to see that your grandchildren are going to perform for you on this auspicious occasion of Janmashtami, celebrating the Grandparent Day with you, for you, and enjoy the festival of the nation. एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सबने सुनी है कि भूल से ब्याज प्यारा होता है। दुनिया की कुछ दादियाँ मुस्कुरा रही है, सोचती है कि दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ, दादा दादी नाना नानी बनने की एक तरफ। और सच्ची है, ये जीवन की आपाधापी में अपने बच्चों का के प्रति अपना कर्तव्य निभाते निभाते कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। पहले अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग, फिर उनकी एजुकेशन, फिर उनकी जॉब, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे, पूरा 5 सूत्री कार्यक्रम है, तब कहीं जाके ग्रैंड पेरेंट बनने का सुख प्राप्त होता है। पर आप सभी जानते हैं ये सुख होता बहुत सुखद है। आप लोग याद करें अपनी शादी में घोड़े पर बैठने में आपको वो आनंद नहीं आया होगा जो आनंद आपको इन बच्चों के लिए घोड़ा बनने पे आया होगा। पिताजी की डांट का अंदेशा होते ही दादी के पीछे छुप जाना किसी बंकर की सुरक्षा से कम नहीं था। अभी 3 दिन पुरानी बात है, जन्माष्टमी के दिन देर रात तक झांकी देखने की जिद हो या दादी के हाथ की या नानी के हाथ की बनी पुदीने की पंजीरी का स्वाद आज भी आपको याद होगा। एंड factually, if you see, when we were around 30 to 40 years of age, we were not having any time for our own kids because at that time we were busy in making our own career. So, if you wish to retrieve the childhood, if you wish to see the childhood once again of your own children, you can do it with your grandchildren. Play with them, share with them these stories, give them as much time as possible. This will maintain your pulse, BP, sugar, normal to some extent. दवाइयाँ बंद मत करिएगा. Means this will give you the entire satisfaction, which will keep you, healthy, or your routine life will also be perfect and good. Because the moment you play with them, the moment you share with them the story, the way you involve them with them emotionally, you will find that the most of these stresses are diluted. Most of these stresses are diluted. And now, I will tell you that if I simply wish you and tell you the reasons of celebrating the Janmashtami, will not be sufficient, rather I would say will not be fair, because everybody knows that it is the birthday of Lord Krishna. But even then I will tell you, my dear students, listen to me very carefully, all the students, that Krishna does not mean only cow, butter, milk, fluid, gopis, Ras Leela, etc., etc., etc. Krishna actually means the work, the karma, the duties. And as students, what is your duty? What is your work? What is your karma? The work is supreme. The work is worship. Silence, please. The work is supreme. The work is everything. The work is religion. The work is, problem to any solution. It's a solution to solve a solution to any problem. And as a student, what is your work? To study. So always keep your study schedule on topmost priority and give your best. Otherwise also academically, if you see Janmashtami is being celebrated to give you an alarm to recharge yourself. Considering the academic session commencing from 1st April, approximately 40% of the session is over. So put the accelerator on and take the momentum to achieve the stipulated target. The time is less and the work is more. But still, you have enough, 55% time is available.
to achieve the target, the goals, whatever you have decided. Looking to the, the age and the temperament of the grandparent, I, on this auspicious occasion, definitely would like to tell all the grandparents very specifically that as far as BPS is concerned, their grandchildren are in the safest and the best possible hands with respect to their mental and emotional health, their safety and security, their childhood and moral values, of course, over and above their academics and co-curricular activities. So need not to worry at all, because in my age group or in your age group or in the age group of the grandparents, you will always find that we are practically, free unless we want ourselves to be engaged. We have, more of tensions. We have. As I said that मूल से ब्याज पैदा होता है, so you should be rest assured that as far as their academics are concerned, they are already in the safe hands. So you need not to worry at all. Finally, without taking much of the time, I would say that should I say that let BPS be a temple of learning for all of us, where the work is worship. I think this message is enough to celebrate in real sense the birthday of Lord Krishna, which we say the Janmashtami, a very auspicious occasion. And as far as the decoration is concerned, as always, this year is again beautiful and wonderful. As soon as I entered auditorium, I could feel the sense and presence of Lord Krishna here. God bless. Thank you, entire BPS team. Thank you. Calming strength, just like Shri Krishna's flute. And today again, your thoughts have given us direction and inspiration. As they say, your words were like music to. You think of Krishna and there is light, so no adharma can survive when Krishna is around. With permission, we would like to start. Dear grandparents, the moment you have been eagerly waiting for is finally here. I know many of you have traveled far and wide, not to hear me speak, but to see your little Gopal and Radha spread joy and happiness on this stage. So now, it's time for me to step aside and invite the true stars of today's event. The hearts of Bal Gopal fill your hearts with divine bliss. May I invite our junior anchors. जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है अन्वी और मेरा नाम है मानी। तुम तो बहुत शरारती हो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण के आगे मैं शरारत क्या है? सच में माखन चुराना, गोपियों की मटकी फोड़ना और एक भोली सी मुस्कान देना, पूरे सब जानते हैं नटखट कृष्ण के नाम से। तो चलो चलते हैं उनकी मस्ती भरी लीला। तो चलो चलते हैं गोकुल की गलियों में। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए LKG के विद्यार्थियों का, जो लेकर आ रहे नटखट नंदलाल। थैंक यू। अरे
बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जितने दादा दादी और नानियां बैठे हैं उनसे विनम्र आग्रह, तालियां बजाने में कंजूसी ना करें और उनका उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। जी, and I am Jayavardhan. We both welcome you to this program. Today, we will tell you a beautiful story, a story about Radha and Krishna. Yes, Krishna used to play the flute so sweetly, and Radha used to dance with joy when she heard it. Their love for each other was very pure and divine and eternal too. Their love is remembered even today. So now, let's witness the bond of Radha and Krishna. Thank you. टाइटल नन्ना काना प्यारी राधा। गोरी राधा ने कालो कान, गरबे घूमे भूली राधाનું રૂપ છે, બાંધુડાની પ્રીત છે, આંખો માંડીને જુવેગા। હે ગોરી રાધા ને કાળો કાન, ગરબે ઘૂમે ભૂલી उत्साह बढ़ाइए हमारे नन्हे नन्हे बच्चों का। मेरा नाम है दीक्षा। सुना है श्री कृष्ण को नृत्य बहुत पसंद था। और मेरा
के साथ रास लीला करते थे। ये रास लीला क्या होती है? रास लीला मतलब कृष्ण जी का नाच गोपियों के साथ। क्या सब खुश होते थे? बहुत। वहाँ सिर्फ प्यार, संगीत और खुशी होती थी। क्यों ना हम सभी आज यहाँ उस रास लीला का आनंद लें? तो ठीक है, रास लीला जिसे लेकर आ रही है नर्सरी के छात्र। थैंक यू। थैंक यू। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गए रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। Hope our grandparents are enjoying their lovely grandchildren performing to the tune of Shri Krishna and enjoying with Radha. Jai Shri Shyam! A heartfelt welcome to everyone in this auditorium. My name is Ekaksh. And I, Aradhya, we warmly welcome each one of you to this special gathering today. Tell me something. Have you ever heard about Khatu Shyam Baba? Oh yes, you know, when I come to school from Mahavir Nagar, I pass by a beautiful roundabout for Ghatotkaach Circle. Ghatotkaach Circle? Anyways, I recently had a chance to visit Khatu Shyam Ji's temple. It was such a divine and joyful experience. Wait a second, I am talking about Ghatotkaach and you are talking about Khatu Shyam Baba. What's the connection between the two? You don't know? There is a deep connection between Khatu Shyam Baba, Ghatotkaach and the great epic Mahabharata. Really? I had no idea, and I am sure many of our friends may not know about it either. Our grandparents might already know the story, but for our young friends, we now present a dance drama that brings this beautiful tale to life. The story of Shyam Baba, the king of Khatu, brought to you by the talented students of class 3rd to 5th. Please give a big round of applause for them.
राजस्थान के सीकर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक मंदिर है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भगवान श्री खाटू श्याम को गुलाब का फूल अर्पित करके अपनी मनचाही मनोकामनाओं का वरदान मांगते हैं। परंतु क्या आप भगवान खाटू श्याम का इतिहास जानते हैं? आज से लगभग 5000 साल पहले भारतवर्ष में एक विनाशकारी युद्ध महाभारत की योजना बनाई जा रही थी, जहां एक ओर थे 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर थे 5 पांडव। इसी बीच हस्तिनापुर में एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसका नाम सुनकर कौरवों और पांडवों के कलेजे कांप उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। जय श्यामा 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 जय श्यामा। मेरी अखियों में तेरी छवि बस गई सांवरे, दिल तेरे जीवन की नैया भंवर में बस गई सांवरे। मुझको एक तेरा हौसला है बस, गूंजना तेरा मेरी नस नस, गूंने ही है किया मेरा हाल ठीक। बरबरी बरबरी जो है तेरी शरण में उसको क्या की तकलीफ। बरबरी बरबरी जो है तेरी शरण में उसको क्या की तकलीफ। तेरे दर से मैं डर हो जाऊं जुदा, तेरे बिन मेरा दिल ना लगे। हाथ वाला तेरा मेरा जब से हुआ मेरे जीवन के है बात जगे। तेरे दर से मैं डर हो जाऊं जुदा, तेरे बिन मेरा दिल ना लगे। हाथ वाला तेरा मेरा जब से हुआ मेरे जीवन के है बात जगे। जन्म से ही बर्बरीक एक अजय योद्धा होना चाहते थे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने बर्बरीक को वरदान के रूप में 3 ऐसे बाण प्रदान किए जो पल भर में समुचित सेना का संहार कर सकते थे। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जाओ, हौसला हार न जाओ। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध की जानकारी हुई तो उन्होंने संकल्प लिया कि वह इस युद्ध में उस सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। बर्बरीक का यही संकल्प कौरवों और पांडवों के लिए चिंता का कारण बन गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए ब्राह्मण वेश में उनसे मिलने आए। प्रणाम ब्राह्मण देवता। हे वीर योद्धा, आप कौन हैं और इस युद्ध भूमि की ओर क्यों जा रहे हैं? मैं बर्बरीक हूँ,
घटोत्कच का पुत्र और भीमसेन का पौत्र, मैं यह युद्ध देखने आया हूं और यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें भाग भी लूंगा। परंतु यह तो बताइए, आप किस पक्ष से युद्ध करेंगे? मेरा संकल्प है कि मैं सदैव पराजित होते पक्ष की सहायता करूंगा। यदि बर्बरीक युद्ध में गया तो युद्ध का अंत ही नहीं होगा। हे बर्बरीक, मैं स्वयं श्री कृष्ण हूं। तुम्हारा यह संकल्प इस युद्ध में अधर्म को जन्म दे, अतः मैं तुमसे तुम्हारे शीश का दान मांगता हूं। प्रभु, यदि मेरी उपस्थिति धर्म को बाधित करती है तो मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मेरा उद्देश्य लड़ना नहीं, सिर्फ इस अद्वितीय युद्ध को देखना है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी बर्बरी। तुम्हारा शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख पाओगे। प्रभु, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं धर्म की स्थापना में योगदान दे सकूं। आप मेरी बलि स्वीकार करेंगे। हे बर्बरी, तुम्हारा त्याग और भक्ति अतुलनीय है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम नाम से ही जानेंगे। तुम्हारा दरबार खाटू धाम में बसेगा और तुम हारे का सहारा कहलाओगे। प्रभु, यह मेरे लिए अमृत से बढ़कर है। आपने मुझे जो दिया वह युगों युगों तक जीवित रहेगा। जय श्याम बाबा। जिसने शीश दिया पर युद्ध नहीं किया, फिर भी सबसे बड़ा दानी कहलाया। श्याम बाबा की। राजस्थान के तो अब आप सबको पता चला होगा खाटू श्याम बाबा का असली नाम क्या है। बर्बरीक। एक बार जोरदार तालियां इन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बहुत कम समय में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आपके लिए, जो ना केवल रोचक था बल्कि ज्ञानवर्धक भी और हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है सुरष्टि और मैं हूँ आरव। हे कान्हा, तुम कैसे हो? कभी माखन चोर, तो कभी अर्जुन के सारथी, तो कभी गीता के ज्ञाता। आखिर एक रूप में इतनी सारी कलाएं कैसे समा गई? वो साधारण नहीं थे, पूर्ण पुरुषोत्तम थे, जिनमें 16 कलाएं थी और हर कला एक दिव्य लीला बनकर इस धरती पर उतरी थी। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस अद्भुत यात्रा पर, जहां उन्होंने जन्म लेकर युगों का मार्गदर्शन किया। सबसे पहले वो रात याद कीजिए जब जेल की कोठरी में बिजली की गड़गड़ाहट के बीच जन्म लिया एक नन्हे बालक ने और वासुदेव उसे यमुना पार ले गए। फिर आया
वो दृश्य जब नन्हे कृष्ण ने अपने नृत्य से कालिया नाग को परास्त कर दिया। कौन कहे एक बालक है। और वो माखन चोरी, वो सिर्फ शरारत नहीं थी, वो था एक प्रेम का माध्यम जिससे गोकुल की हर ग्वालिन कृष्ण में अपना भगवान देखती थी। जब इंद्र ने अपना प्रकोप गोकुल पर बरसाया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर यह दिखा दिया कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर आई रासलीला, जहाँ प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण एक हो गए। वहाँ कोई भेद नहीं था, सिर्फ कृष्ण थे और उनकी बांसुरी थी। और अंत में कुरुक्षेत्र, जहाँ रथ के सारथी बने श्री कृष्ण ने वो अमर ज्ञान दिया जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो सोचिए, एक ही जीवन में जन्म से लेकर युद्ध तक, बालपन से ब्रह्म ज्ञान तक कितनी कला का संगम था श्री कृष्ण में। और आज का ये नाटक उन्हीं सारी कलाओं की एक छोटी सी झलक है, जहाँ उनके जन्म से लेकर गीता के उपदेश तक की यह पावन कथा है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलें और श्री कृष्ण के रूप, लीलाएं और ज्ञान से आत्मा को सराबोर करें। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने माखन से मोक्ष तक। युद्ध में अपनी ज्ञान से उन्होंने पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को दिखाया कि वास्तविक ज्ञान क्या है। तो आज एक नृत्य नाटिका के रूप में पूरा कृष्ण जीवन आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप ही इस संसार के पालनहार हैं, आप ही नारायण नारायण। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है, प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं, आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्य का न शेष है, अहम है राग देश है। अनिष्टकारी, निर्दयी, निशंस है ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान, धर्म का राजा, अजय योद्धा।
जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाही, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। यशोदा और नंद ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। कृष्णा कृष्णा
जो वृंदावन वासियों के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावनवासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। वृंदावन प्रेम और भक्ति का एक पवित्र स्थान। यहाँ
राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हमें मनवारी, कृष्ण कृष्ण तुम्हारा है हर पल भूल के सद्बुद्ध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मन को शांति देती है, आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को सार्थक बनाती है। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण रखता है। इन सभी में भक्त कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता है। कृष्ण भगवान एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। गीता सार भगवत गीता के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। कन्हैया, गोपाल, मुरलीधर, माखन चोर, गोविंद, रास बिहारी और ना जाने क्या क्या। सच? लेकिन हर नाम इतना अलग क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण हर रूप में खास है। जब मुरली बजाते हैं तो मुरलीधर, जब वो माखन चुराते हैं तो माखन चोर, जब वो
गोपियों संग रास रचाते हैं तो रास बिहारी। कृष्ण सिर्फ नाम ही नहीं, हर नाम एक कहानी है। हर कहानी में छुपा है प्यार, मस्ती और ज्ञान। तो प्रस्तुत करते हैं कृष्ण नामों का रंगमंच। शाम ढली
देखो जी मने वाली लगे तारी द्वारिका राधा ना करशान जी ओ माधव मारा मोहन जी काड़ा काड़ा कान जी ओ ठाकुर जी राधा जी ना श्याम जी हाथी घोड़ा पाल की इस बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए उत्साह, उमंग, जोश और आप सभी की तरह मैं भी एक कृष्ण भक्त हूँ। आप सभी की तरह मैं भी एक कृष्ण भक्त हूँ, विशेषकर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है। उन्हें प्यारे, मासूम और चंचल रूप से पूजा जाता है। उन्हें झूले में बैठाना, नए वस्त्र पहनाना और तरह तरह के व्यंजन, विशेषकर माखन और लड्डू का भोग लगाना भक्तों के लिए अत्यंत आनंददायक होता है। भक्त मानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि, प्रेम और शांति बनी रहती है। उनका बाल रूप हमें प्रेम, करुणा और सरलता का संदेश देता है। अब आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया आरती के लिए खड़े हो जाएं और भक्ति में सम्मिलित हों। मैं और आरती की इस परंपरा का निर्वहन करें। एक बार जोरदार तालियां। Chief Mentor and Director, Honorable Pramod Kumar Bansal sir, and all other dignitaries present here. Today is a very special day. ये याद दिलाता है और बताना चाहता है कि हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना प्यार, संस्कार और अनुभव देते हैं। टुडे और स्पेशल कि टुडे जन्माष्टमी के दिन आज ये ओकेज़न रखा गया है, जो कि बहुत ही सुखद है। और हम जैसे कृष्ण की लाइफ हमें सिखाती है लव, जॉय, विजडम, डिवोशन, वही वैल्यू हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देना चाहते हैं। फॉर मी दिस इज़ अ मैटर ऑफ जॉय एंड प्राइड बिकॉज टुडे माई ग्रैंड डॉटर प्रिशा गुप्ता हैज़ परफॉर्म her first performance on the stage. I am so glad. आगे और
बहुत कुछ है कहने को। जो प्रोग्राम वाज सो वेल, मुझे इतना मतलब आंसू आ गए करने की। ईच एंड एवरी प्रोग्राम वाज सो ग्रेट। टीचर्स डिड वेरी गुड जॉब और उन्होंने बहुत ही मेहनत की होगी इन प्रोग्राम को बनाने के लिए। और उनका जो थकान, उनका जो डिवोशन और उनका हार्ड वर्क सब दिखाई दे रहा था। और जब मेंटर का एप्रिसिएशन मिलेगा और काइंड वर्ड्स मिलेंगे तो उनकी सब थकान चली जाएगी, मुझे विश्वास है। आगे आई वुड लाइक टू थैंक प्रमोद सर को अगेन। He came here to motivate these kids, and thanks to all the teachers and all the school family, entire school family, who make this program so successful. And my heartfelt thanks to all the kids, all the students who performed here, because they are our pride, our joy, our biggest blessings. So, dear children, keep smiling, keep dancing, keep spreading happiness, just like little Krishna. और मैं ये सब इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर रही हूँ। तो मुझे मैंने बहुत ही इन्जॉय किया इस प्रोग्राम को। थैंक यू एंटायर फैमिली ऑफ स्कूल एंड सर ऑल्सो यू, बिकॉज और आपने जो हमें इतनी गुड अपॉर्चुनिटी दी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, अपने बच्चों को डांस करते देख सकें। और जैसा बंसल ने बताया कि हम अपने बच्चों को बड़ा करते वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो यस, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हम वो टाइम स्पेंड करना चाहेंगे और करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन all the entire school family, sir. Once again, thank you so much inviting us. Thank you. Thank you all these words. And now, I request all the dignitaries to please come forward for this आरती। विशेषकर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। उन्हें प्यारे, मासूम और चंचल रूप से पूजा जाता है। उन्हें झूले में बैठाना, उन्हें नहलाना, नए वस्त्र पहनाना और तरह तरह के व्यंजन, विशेषकर माखन और लड्डू का भोग लगाना भक्तों के लिए अत्यंत आनंददायक होता है। भक्त मानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से घर में सुख, समृद्धि, प्रेम और शांति बनी रहती है। उनका बाल रूप हमें प्रेम, करुणा और सरलता का संदेश देता है। अब आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया आरती के लिए खड़े हो जाएं और भक्ति में सम्मिलित हों।
एक हमारे वरिष्ठ जन है इस धुन में इतना खो गए, नानों का नृत्य करने का मन कर रहा था। कृष्ण भक्ति की बात ही कुछ और है। आपसे अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे एक छात्र हैं चिरायु, yes, Krishna बोलिए। Jai Shri Krishna. And as the melodies of Krishna's flute fade and smiles of today linger in the hearts, we thank जय श्री कृष्ण बोलिए। each one of you for making this celebration truly memorable. To our grandparents, you truly are a blessing. And may Krishna's grace always guide us, protect us and inspire us. On behalf of Bansal Public School, we wish you all peace. And with this, we come to end. I request all the grandparents to take refreshments before they move out of this campus. Dhanyavad. Jai Shri Krishna. Jai Radhe.